Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg. Today I discuss with you the topic of class 12, subject is business studies and our topic is external source of recruitment. In my previous video, I explained with you the three types of the external source. First one is the direct recruitment, second one is the casual caller and third one the media advertisement. In today's class, I discuss with you the next three one is that employment exchange, placement agency, and management consultant. Before I discuss with you all the three one, I want to explain in brief the previous three one. First one is the direct recruitment. In direct recruitment, I explained that whenever a post vacant in a business organization, the complete detail of that type of the post we mention on the notice board, and the notice board will be placed at the factory gate, at the entrance gate, workshop. Anyone who saw the board apply for the post in the organization, and after that the complete process of the selected candidate will take place. In that particular source, only the post like as the sweeper, peon, means we can say that there is a temporary based job, not a permanent based job. We use direct recruitment. Second one is the casual caller. Means that when a particular candidate wants to get a job in a reputed organization, but in a reputed organization there is no any type of the vacant post, then with the hope that in future any type of the vacant post will be vacant in a business organization, then that company will call them. With that hope, the candidates send their applications time to time in that reputed organization. In future, whenever a vacant post is available in the organization, then the HR manager will call them. HR manager, a particular company manager, maintain a record of every type of the employees who send their application time to time about their credential information, and on that type of the record, HR manager of company call them and interview will take place and candidate will be selected. Next one is that media advertising. In media advertising, it is a lengthy process and a costly process in which a particular organization who wants to appoint a candidate in a business organization, with the help of which the candidate apply for the job, as well as a number of the applications will be received for a particular post. Every type of the information about the vacant post, like the number of posts, nature of post, salary, qualification, experience, will be mentioned in the particular advertisement. The source of advertisement is newspaper, magazine, internet, mail, etc. Means that these are the three sources I explained in detail in my previous video. Today I discuss with you the next three one is that. First one is employment exchange. Employment exchange is very important source of the recruitment for the case study point of view and the direct question asked by the CBSE in the CBSE board. So it is very important for you. In employment exchange, a particular government select a very type of the district, or you can say that in every district. In every district, government set their offices for employment. In that type of the offices, there are a particular person who maintain the record of the every type of the information is known as the officer, registrar. That type of the officer will be appointed to administrative work of the employment office in a particular district. After that, a particular job seeker who want to job apply and send their credential, their information to the employment office. The particular officer maintain a register
and record every type of the information of the job seeker, and after that a particular company in which a post is vacant, the HR manager of company, the personal manager of company will contact with the officer of the employment office and send detail of the vacant post in the organization. The particular officer, after getting the information of the vacant post qualification experience, he match the vacant post qualification with the registered candidates who apply for the job या who send information about the vacant post, who want to job in a particular organization, who want to job in any organization. The officer of the employment exchange match the register, match the qualification of the candidate to the vacant post. After that, the candidate will be sent, the candidate will provide a particular address of the company, and after that the company will take their interview and select a particular candidate for the post. This is the employment exchange. मीन्स दैट आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एक ऑफिस ओपन करती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर. उस डिस्ट्रिक्ट में जो आपका ऑफिस होता है, उस ऑफिस को कंट्रोल करने का काम ऑफिसर करता है. वो ऑफिसर एक रजिस्टर मेंटेन करता है. इस रजिस्टर के अंदर जो भी आपके जॉब सीकर है, जिन्हें भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो जॉब सीकर क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन की जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है, अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में रिकॉर्ड करवा देंगे. और कोई भी कंपनी है जिसके पास कोई वैकेंट पोस्ट है, वो इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफिसर के पास भेज देगी. अब ये ऑफिसर इस रजिस्टर से जॉब सीकर को और वैकेंट पोस्ट को दोनों को मैच करता है. जिस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन जॉब से मैच होती है, उस कैंडिडेट को कंपनी के पास भेज दिया जाएगा. कंपनी अपने लेवल पर उसका इंटरव्यू लेगी और उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है नहीं करना कंपनी डिसाइड करती है. इसका कोई काम नहीं है. ये अपने वर्क के बदले फीस चार्ज करती है. जो भी इनकी फीस चार्ज और फीस होती है वो नॉमिनल फीस होगी, वो फीस आपको पे करनी पड़ती है. वो उसके अंदर इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया जाए. मेनली ये जॉब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, लोअर लेवल मैनेजर के लिए होती है या मिडिल लेवल मैनेजर के लिए मान लीजिए, क्योंकि कंपनी जो है टॉप लेवल मैनेजर के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या प्लेसमेंट एजेंसी को कम यूज करती है. उसके लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट को यूज किया जाएगा. तो ये सारा वर्क जो है किसका है, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का. इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका प्लेसमेंट एजेंसी. प्लेसमेंट एजेंसी भी बिल्कुल सिमिलर ही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह. इस केस में क्या होता है कि आपकी जो है गवर्नमेंट नहीं होती. यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं वेरियस टाइप के प्लेसेस पर. उस ऑफिस को कंट्रोल करने का काम आपके प्राइवेट ऑफिसर करेंगे. जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने उस फायर कर रखा है, उन ऑफिसर का काम वही है. ये भी क्या करेंगे, रजिस्टर को मेंटेन करेंगे. उस रजिस्टर के अंदर जितने भी जॉब सीकर हैं, जिन्हें भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो जॉब सीकर अपनी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास भेज देंगे. ऑफिसर उस रजिस्टर के अंदर उनकी सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेगा. ऐसी ही कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई पोस्ट वैकेंट होती है, उस वैकेंट पोस्ट की इंफॉर्मेशन भी कंपनी की तरफ से यहाँ पर पहुंच जाती है. अब इस ऑफिसर का काम क्या होता है कि जॉब सीकर की क्वालिफिकेशन को इस वैकेंट पोस्ट से मैच करता है. मैच करने के बाद आप ये कह सकते हो कि उस कैंडिडेट के इंटरव्यू लेने तक के काम में ये प्लेसमेंट एजेंसी जो है हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी. कहने का मतलब बिल्कुल फाइनली अगर कंपनी को लगता है कैंडिडेट जॉब के लिए बिल्कुल सही है, इंटरव्यू लेने के बाद उसके बाद उस कैंडिडेट को कंपनी के पास भेज दिया जाएगा. अब कंपनी एक फॉर्मेलिटी करती है, क्योंकि इंटरव्यू लेने तक का काम प्लेसमेंट एजेंसी ने कंप्लीट कर लिया है. अब कंपनी उसे अपनी बेसिक चीजें पूछेगी या कंपनी से रिलेटेड जो उसे लगता है वो चीजें पूछेगी. मोस्टली 99% तो होता है कि कैंडिडेट जॉब के लिए सिलेक्ट है, लेकिन 1% हो सकता है कंपनी को वो सही ना लगे. तो उस केस के लिए कंपनी अपने लेवल पर इंटरव्यू लेके उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगी. वो सारा वर्क है जो हमने अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में किया था. बस डिफरेंस ये है कि वहां पर गवर्नमेंट हर जगह एस्टेब्लिश करती है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी. काम वही है, ऑफिस एस्टेब्लिश होगा, ऑफिसर होगा, वो उसको रिकॉर्ड करेगा रजिस्टर में सारी इंफॉर्मेशन जॉब सीकर की, कंपनी की वैकेंट पोस्ट की. वैकेंट पोस्ट और जॉब सीकर की क्वालिफिकेशन को मैच कर लेंगे. मैच करने के बाद इंटरव्यू लेने का काम भी आपकी प्लेसमेंट एजेंसी करती है और फाइनली कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में भेज देगी.
इस केस में भी जो प्लेसमेंट एजेंसी है वो क्या लेती है, फीस चार्ज करती है अपने सर्विस के बदले। इसमें भी जो आपके पर्टिकुलर लेवल की जॉब होती है वो लोअर लेवल मैनेजर या मिडिल लेवल मैनेजर होंगे, उन्हीं के लिए होती है। बस हमेशा ही माइंड में रखना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट हर ऑफिस अपने डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश करती है, प्लेसमेंट एजेंसी गवर्नमेंट नहीं करती, प्राइवेट कंपनी करती है। दूसरा डिफरेंस ये मान सकते हो कि गवर्नमेंट कंपनी या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था उसमें कंपनी इंटरव्यू नहीं लेती, वो उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंटरव्यू नहीं लेता, वो कंपनी के पास भेज देगा, कंपनी अपने लेवल पे इंटरव्यू लेगी, फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी में ये इंटरव्यू लेने का काम भी खुद कर सकते हैं और कैंडिडेट को सिलेक्ट करके फिर कंपनी के पास भेजेंगे, कंपनी उनको अपॉइंट करती है, वो कंपनी पे डिपेंड, फीस दोनों में लगेगी, ये कॉमन चीज है। तो ये आपकी प्लेसमेंट एजेंसी थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी बिल्कुल आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह ही है, या फिर आप कह सकते हो प्लेसमेंट एजेंसी की तरह, वही है बिल्कुल। इसके अंदर आपके लोअर लेवल मैनेजर और मिडिल लेवल मैनेजर जो है उनको अपॉइंट करने का काम किया जाता है। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये तो है नहीं कि बस लोअर लेवल मैनेजर या मिडिल लेवल मैनेजर की पोस्ट वैकेंट होगी। कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि हायर लेवल मैनेजर मींस टॉप लेवल मैनेजर या हायर लेवल मैनेजर है, उनकी पोस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट हो सकती है।